1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 8 चैप्टर 1 वर्स से 21 वर्स, जोशुआ 3 चैप्टर 4 चैप्टर। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 1 वचन से 21 वचन, यहोशुआ 3 अध्याय 4 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें वचन पढ़ने का ये समय अद्भुत रीति से पिता पवित्र आत्मा से भरकर देने के लिए धन्यवाद करते हैं। हर अशुद्धता, धोखा, झूठ और पिता परमेश्वर, हर एक पिता परमेश्वर लापरवाही का आत्मा जो पिता आपके वचनों के विषय में गहरी ज्ञान प्राप्त करने से मना करता है, अब ऐसा हर एक अशक्त करने वाला आत्मा आज पिता परमेश्वर इस वचन पढ़ने के समय से खत्म हो जाए और तेरे आत्मा का सामर्थ्य हम पर रिलीज होता जाए, ताकि हम सच्चाई को जानते जाए और पिता परमेश्वर आपका भय में बढ़ते जाए और हम परमेश्वर आपकी योजना में आगे बढ़ते जाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। ल्यूक 8 चैप्टर 1 वर्स से 21 वर्स पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, फिर पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से। ल्यूक 8 चैप्टर किंग्स जेम्स वर्जन में से फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। एंड इट केम टू पास आफ्टरवर्ड दैट ही वेंट थ्रू आउट एवरी सिटी एंड विलेज preaching and shewing the glad tidings of the kingdom of God, and the 12 were with him. And certain women which had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom went 7 devils, and Joanna, the wife of Chuza, Herod's steward, and Susanna, and many others which ministered unto him of their substance. And when much people were gathered together and were come to him out of every city, he spake by a parable. A sower went out to sow his seed, and as he sowed, some fell by the wayside, and it was trodden down, and the fowls of the air devoured it. And some fell upon a rock, and as soon as it was sprung up, it withered away, because it lacked moisture. And some fell among thorns, and the thorns sprang up with it and choked it. And other fell on good ground, and sprang up, and bare fruit an 100-fold. And when he had said these things, he cried, He that hath ears to hear, let him hear. And his disciples asked him, saying, What might this parable be? And he said unto you, It is given to know the mysteries of the kingdom of God, but to others in parables, that seeing they might not see, and hearing they might not understand. Now the parable is this: the seed is the word of God. Those by the wayside are they that hear. Then cometh the devil, and taketh away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. They on the rock are they, which when they hear, receive the word with joy, and these have no root, which for a while believe, and in time of temptation fall away. And that which fell among thorns are they which, when they have heard, go forth, and are choked with cares and riches and pleasures of this life, and bring no fruit to perfection. But that on the good ground are they which in an honest and good heart, having heard the word, keep it, and bring forth fruit with patience. No man, when he hath lighted a candle, covereth it with a vessel, or putteth it under a bed, but setteth it on a candlestick, that they which enter in may see the light. For nothing is secret that shall not be made manifest, neither anything hid that shall not be known and come abroad. Take heed therefore how ye hear. To whosoever hath, to him shall be given, and whosoever hath not, from him shall be taken even that which he seemeth to have.
Then came to him his mother and his brethren, and could not come at him for the praise. And it was told him by certain which said, Thy mother and thy brethren stand without, desiring to see thee. And he answered and said unto them, My mother and my brethren are these which hear the word of God and do it. Now it came to pass on a certain day that he went into a ship with his disciples, and he said unto them, Let us go over unto the other side of the lake. And they launched forth. But as they sailed, he fell asleep, and there came down a storm of wind on the lake, and they were filled with water, and were in jeopardy. Okay, 21 verse तक ही पढ़ना था हमको. And he answered and said unto them, My mother and my brethren are these which hear the word of God and do it. हम हिंदी में इसी अध्याय को पढ़ेंगे. लूका अध्याय 8 पहले वचन से पढ़ेंगे. इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा. और वे 12 उसके साथ थे, और कितनी स्त्रियां भी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी. और वे यह है, मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी यूअन्ना और सुसन्ना, और बहुत सी और स्त्रियां, ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी. जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा कि एक बोने वाला बीज बोने निकला. बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया. और कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया. कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा, और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया. और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उग कर 100 गुना फल लाया. यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले. उसके चेलों ने उससे पूछा कि यह दृष्टांत क्या है. उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी न देखे और सुनते हुए भी न समझे. दृष्टांत यह है, बीज तो परमेश्वर का वचन है. मार्ग के किनारे के वे ये जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है, कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए. चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं. परीक्षा के समय बहक जाते हैं. जो झाड़ियों में गिरा सो वे है जो सुनते हैं, पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं, और उनका फल नहीं पकता. पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं. कोई दिया बार के बर्तन से नहीं छिपाता और न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए. कुछ छिपा नहीं जो प्रकट न हो, और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रकट न हो. इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है. उसकी माता और भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट न कर सके.
और उससे कहा गया कि तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने उसके उत्तर में उनसे कहा कि मेरी माता और मेरे भाई यही है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। थैंक यू फादर गॉड, हम आपके लिए धन्यवाद करते हैं। हमें फिट एंड फिक्स कीजिए पवित्र आत्मा, इन वचनों में ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।